आंध्र प्रदेश असेंबली में अपोजिशन लीडर वाईएस जगन मोहन रेड्डी की प्रजा संकल्प यात्रा आज इच्छापुर में इख्तिताम को पहुंची। जगन मोहन रेड्डी ने यात्रा के दौरान 3648 किलोमीटर का सफर तय करने की तारीख रकम की है। जगन मोहन रेड्डी ने 341 दिन में यात्रा मुकम्मल की। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सैकड़ों रैलियां और रोड शो से खिताब किया। 2600 गांव का दौरा करते हुए समाज के हर तबके से मुलाकातें की और अवामी मसाइल से वाकफियत हासिल की। जगन मोहन रेड्डी ने इस यात्रे के दौरान तेलुगु देशम हुकूमत की नाकामियों से अवाम को वाकिफ भी करवाया। जगन मोहन रेड्डी इस यात्रा के जरिए आंध्र प्रदेश में इक़्तिदार हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं। Where the person is, you know where he's sleeping, you know where he's headed. So you have a person who is wanting to listen to your problems, who is willing to voice out your concerns. What we've done in this Padayatra is, not only did we tour the constituency, every third day or every second day before we leave the constituency, there was also a huge public meeting what was also conducted in that constituency. So we used to air out the views of the people, their concerns, expecting that the government would be pressurized to act. आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने रामपट्टनम में पोर्ट और पेपर इंडस्ट्री का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर एशिया पल्प एंड पेपर और एपी हुकूमत के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत किए गए। चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में जारी तरक्याती कामों को आवाम से वाकिफ करवाया। इस मौके पर जन्मभूमि प्रोग्राम में भी वजीर आला ने शिरकत की। కమర్షియల్ పోర్ట్ ఎక్కడ ప్రారంభించాం. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ముందుకు రాకపోయినా, హెచ్పిసిఎల్ ముందుకు రాకపోయినా, హల్దియా ఆధ్వర్యంలో ఒక పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్ కి 62,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడికి ఎంఓయూ చేశాం. అమరావతిలో మీరందరూ చూడాలి, ఇక్కడే ఉన్నారు. అమరావతి, పోలవరం ప్రతి ఒక్కరూ చూడవలసిన అవసరం ఉంది. దానికి కావాల్సిన సదుపాయాలు కూడా చేశాం. మీ జీవితంలో ప్రాజెక్టు కట్టేటప్పుడు చూస్తే మీకు ఒక అవగాహన వస్తుంది. మీరు దాన్ని చూడాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటున్నా. మనం అనుకున్న పనులన్నీ సుజావుగా అవుతాయి. నేను ఇప్పుడు అభివృద్ధి చేశాం. ఈ అభివృద్ధి ఇక్కడ ఆగిపోదు. నిరంతరం ఇంకా అభివృద్ధిలో ముందుకు పోతాం. కనీస అవసరాలు తీరాయి, మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాం. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్కి వెళ్తాం. ఇప్పుడు ఇచ్చిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు పెద్ద ఎత్తున ఇచ్చాం. అన్ని కూడా స్టాచ్యురేషన్కి వెళ్ళాం. ఇంకొక పక్క మీ ఆదాయం పెంచే కార్యక్రమాలు ఆలోచిస్తాం. రైతు రుణమాఫీ చేశాం. 2 అంకెల అభివృద్ధి సాధించాం. దేశంలో ఎవరు చేయలేని పని చేశాం. అగ్రవర్ణాలకు రిజర్వేషన్లు ఇస్తామని ఇంకొక నెలలో ఎన్నికలుంటే ముందుకు వచ్చారు. అయినా కూడా నేను స్వాగతిస్తున్నా. కాపులకు 5% రిజర్వేషన్లు మనం పంపిస్తే దానికి ఇవ్వలేదు. ఇంకో పక్క వాల్మీకుల్ని ఎస్టీలుగా చేర్చమని మనం పంపిస్తే దాన్ని కూడా ఎక్కడా పట్టించుకోలేదు. వీళ్ళు మాత్రం వీళ్ళకు కావాల్సింది చేయాలనే ఉద్దేశం చేశారు తప్ప ఇంకోటి కాదు. ఏది ఏమైనా అది చేయడమే కాదు, మనం అడిగింది కూడా చేయాల్సిన ధర్మం, బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం పైన ఉందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను. आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने की मांग करते हुए तेलुगु देशम के अरकान पार्लियामेंट का अहाते पार्लियामेंट और बाबदाखिला पर एहतजाज आज भी देखा गया। तेलुगु देशम के अरकान पार्लियामेंट ने आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल पर अमलावरी की मांग की और मरकजी हुकूमत पर एपी से नाइंसाफी का इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को बेनकाब करने के लिए तेलुगु देशम पार्टी एहतजाज कर रही है और आने वाले इलेक्शन में एनडीए को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए कोशिश को जारी रखेंगे। రైల్వే జోన్ కావాలి.
ఈ దేశ ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడు ఈ దేశానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలు ఆయన పట్టించుకోకుండా ఇవాళ బిల్లు పాస్ అయ్యేటప్పుడు ఉండరు, రాఫెల్ విషయంలో ఉండరు, దేశానికి సంబంధించిన అనేక అంశాల మీద ఉండరు. నిన్న మనం చూశారు సిబిఐ కూడా మళ్ళీ ఎలాగా సుప్రీంకోర్టు ముట్టుకెళ్ళి ముట్టారు. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చేతులారా వాళ్ళు చేసుకుని అపాస్పాలు అవుతున్నారు తప్ప ఏనాడు కూడా ఏ రాష్ట్రానికి కూడా సహకరించే పరిస్థితి లేదు. రేపు రాబోయే రోజుల్లో 2019 బీజేపీ ఓడిపోవడం ఖాయం. ఒక 50 సీట్లు 60 సీట్లు వస్తే గొప్ప బీజేపీకి. బిల్లు పెట్టడం అనేది మేము చివరి రోజున ఈ రోజున రాజ్యసభ కూడా ఒక రోజు ఎక్సిడెంట్ చేసి దాన్ని తీసుకొచ్చేటంత అవసరం నిజానికి అది అవసరమైనప్పటికీ కూడా దాన్ని పెట్టే విధానం అనేది మేమందరం కూడా దాన్ని ఖండిస్తున్నాం. చిత్తశుద్ధి లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అనేది ఒకటి తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈ రోజున आधुनिकी मुस्लिम अखिलेती इदारे पर बंद के नाम से तलबा और मैनेजमेंट को हरासा करने और स्कूल के अंदर तोड़फोड़ मचाने का एपी एडेड स्कूल मैनेजमेंट ने इल्जाम लगाया है। तंजीम ने स्कूल पर हमला और तोड़फोड़ की मजम्मत की है। एपीएसएम स्कूल के सदर ने कहा कि बाज तलबा तंजीम बंद के नाम से खानगी स्कूलों को निशाना बनाकर खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तलबा तंजीम से गुंडागर्दी का रास्ता तर्क करने की अपील की, वरना कानूनी कार्रवाई करने का भी इंतबा दिया। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ जो है ना डोनेशन कलेक्शन करने के लिए एक बहाना बनाकर जो लोग डोनेशन नहीं देते ऐसे स्कूल के लिए हमले के लिए यहाँ पर ये बंद के जरिए से हमला करते हैं। इसी तरह 2-3 मरतबा भी जो है ना हमारे स्कूल पर हमला हुआ तो टीचरों को है ना मारे और बच्चों को भी है ना मारे। और इसके साथ साथ हमारे अंदर कंप्यूटर लैब और जो है ना प्रिंटर्स और फर्नीचर्स और सर्टिफिकेट के बॉक्स भी तोड़ दिए। आंध्र प्रदेश अनेड स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन है, ये तो पूरी आंध्र प्रदेश में कम से कम 20,000 स्कूल्स मेंबर्स है। आंध्र प्रदेश में कहीं पर कोई स्कूल पर भी कोई टीचर पर भी इस प्रकार के कोई करस्पॉन्ड पर भी कोई चले तो पूरा स्टेट उनके पीछे है। इसके मामले में इधर अदन में हमारे भाई साहब को चले थे, हमको पहचान हो गई। उसको वास्ते हम कर्नूल में आज डिप्टी सीएम आए थे, होम मिनिस्टर, उसको तो एक रिप्रेजेंटेशन दिया हमारे वास्ते। उसके साथ साथ हम सारी कर्नूल जिला के सारी करस्पॉन्डेंट का लादोन जा रहे हैं। वैसा होना बोलते पूरे स्टेट को निकाल सकते। इस प्रकार की यूनिटी है, हमारी यूनिटी बहुत ज्यादा है। और हर एक करस्पॉन्डेंट भी बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए ये एसोसिएशन काम करेगा। हर एक टीचर के वेलफेयर में, हर एक बच्चे के वेलफेयर में, हर एक करस्पॉन्डेंट के वेलफेयर में, सारी एजुकेशन के बढ़ाई के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कर्नूल कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा जन्मभूमि प्रोग्राम में रुकन असम्बली कर्नूल मोहन रेड्डी ने शिरकत की। रुकन असम्बली मोहन रेड्डी ने अवामी मसाइल की यकसोई के लिए मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहन रेड्डी ने न्यूज 18 उर्दू को बताया कि जन्मभूमि प्रोग्राम का अहम मकसद अवाम और अफसरान के दरमियान खिला को दूर करना है। अवामी मसाइल को हल करने में आसानी हो, हुकूमत की फलाही स्कीमात को मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाया जा सके, इसीलिए प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। जन्मभूमि कार्यक्रम चल रहे, एंटायर स्टेट में जन्मभूमि कार्यक्रम चल रहे। ऑल एमएलएस मिनिस्टर्स, सीएम साहब, सब जन्मभूमि ऑफिसर्स, कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर, ऑल डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, मंडल लेवल ऑफिसर्स आल्सो ऑल पार्टिसिपेटिंग इन जन्मभूमि कार्यक्रम। और जन्मभूमि कार्यक्रम में सब ऑफिसर्स पब्लिक साथ जाके उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है मालूम होने के, तकलीफ निकलने के वो जन्मभूमि कार्यक्रम चंद्रबाबू नायडू साहब शुरू करे। पहले कोई गवर्नमेंट में एक प्रोग्राम नहीं है, लास्ट टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट में जन्मभूमि कार्यक्रम नहीं है। और दूसरा गवर्नमेंट क्या है सो पब्लिक कोई काम है तो लीडर साथ जाना, नहीं तो ऑफिसर। उधर कर्नूल तेलुगु देशम पार्टी के सदर शेट्टी ने बताया कि आने वाले इंतखाबात में बीजेपी, वाईएसआर, टीआरएस और जनसेना पार्टियां चंद्रबाबू नायडू का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इन्होंने दावा किया है कि अवाम चंद्रबाबू नायडू के साथ हैं और एपी के अगले वजीर आला चंद्रबाबू नायडू होंगे। उन्होंने मरकज की एनडीए हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। कर्नूल में उर्से हजरत मासूम बादशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का इख्तिताम अमल में आया। संदलमाली मुतवल्ली मौलाना हाफिज नादिर शाह के मकान से होते हुए कर्नूल की अहम सड़कों से गश्त करते हुए दरगाह शरीफ पहुंचा। इस मौके पर सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की। आज दरगाह मासूम बादशाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का संदल शरीफ है, 270 पर 8वां उर्से शरीफ है।
हिंदू मुस्लिम हर एक जने पूरे मिलके यहाँ पर बनाते हैं बहुत अजीब और शाम से। और इस साल चुन्नू बादशाह मियाँ नहीं है, अल्लाह उनको मगफिरत करे और मासूम बादशाह दरगाह के रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में उनको जन्नत मगफिरत करे। यहाँ पर मुसलमान और हिंदू भाई सब मिलकर संदले शरीफ में शामिल होकर अल्लाह ताला की तरफ से इन नेक बंदों के सदक़े में मौला ताला से दुआ करते ही मौला सारे जहां को मुसलमानों को और तमाम भाइयों को इज्जत आबरू के साथ बचा दे। हर साल की तरह इस साल भी आलिशान पैमाने पे हज़रत शाह मासूम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ संदल शरीफ 270 पर 8वां उर्स शरीफ बहुत ही आलिशान पैमाने पे बनाया गया है। इसमें हिंदू और मुस्लिम भाई एकता के साथ आए और संदल चढ़ाए और इसमें बड़े बड़े आइम्मा उलमा के फातिहा। चलिए इस वक्त आपको सीधे लिए चलते राज्यसभा, जहां पर आला जात रिजर्वेशन बिल पर इस वक्त बहस जारी है। तो ये है कि आपने संशोधन तो कर दिया और ये भी कह दिया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को आरक्षण मिलेगा और 10% मिलेगा, लेकिन इसके पीछे कोई डेटा आपने तय किया, कलेक्ट किया कोई डेटा? प्रदेशों में क्या क्या हो रहा है, कहां ओबीसी ज्यादा हैं, कहां दलित ज्यादा हैं, उसकी परसेंटेज हर प्रदेश में क्या है, क्या करना चाहिए, वो डेटा आपने कलेक्ट किया? मुझे याद है कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी और पहली बार 1982 में सदन में रखी गई और उसके बाद 1983 में सदन में रखी गई और फिर 1990 में जाकर पास किया गया। मतलब कि उसको भी लगभग 10 साल लगे। यहां तो आप एक दिन में सब कुछ कर रहे हैं। आपको अच्छा लगता है कि एक संविधान का संशोधन करने जा रहे हो, वो भी एक दिन में, बिना कोई डेटा के, बिना कोई रिपोर्ट के? तो मैं आग्रह करूंगा सरकार से हमें बताएं कि कोई इस पे रिपोर्ट बनी। 8 लाख का मापदंड आपने कैसे तय किया? एक तरफ तो आप इनकम टैक्स जो है, किसी का 1.25 लाख अगर वो कमाता है तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है, 2.5 इनकम टैक्स देना पड़ता है, और यहां 8 लाख में आप कहते हो कि 8 लाख से जो कम होगा वो गरीबी रेखा में आएगा। तो आप वो भी इनकम टैक्स लिमिट 2.5 से 8 लाख कर दीजिए ना, बजट में कर दीजिए ताकि उनको भी राहत मिले। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने कोई डेटा कलेक्ट किया कि कितने लोगों के पास 5 एकड़ लैंड है? हिंदुस्तान में कितने लोगों के पास 5 एकड़ लैंड है? आपने यह तय किया है कि कितने लोगों के पास 100 गज का प्लॉट है? कितने लोगों के पास एक घर 1000 स्क्वायर फीट का है? आपने ये कोई डेटा कलेक्ट किया है सारे